Welcome to DR TSPR show. This is Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab, hello, and a warm welcome to some wonderful guests from Rajkot, from Pune. And let me introduce them. मैं पहले उनकी परिचय करा देता हूं, बाद में अशोक भाई पटेल जी 70 साल के हैं. नमस्कार सर. नमस्कार. और he is a retired businessman living in Rajkot since last 45 years with his family. He is coordinator of an organization Partyless India. बिना पार्टी के भारत. तो यह है आज की अंश और वो संस्था के कोऑर्डिनेटर है. और हमारे अगले अतिथि है. he is from Pune. He is an Ayurvedic physician, Dr. Sachin. Sachin जी नमस्ते. Pune ji. नमस्ते जी. Yeah. Namaste. He is 51 years old. He has been practicing Ayurveda since 2000 and went through areas of business, real estate, construction, automobile dealership, insurance advisor, software company, and then education based on research and all. And he is also connected with the people. Then we have another Kamlesh ji. He is from Rajkot. नमस्कार आपका भी. तो ये सभी हमारे अतिथिगण जो है एक संस्था है जो है बिना पार्टी के चुनाव प्रक्रिया द्वारा भारत को चलाने की एक अंश. लेकिन क्या ये मुमकिन है? Is it possible to run India without parties? Because we are people participatory constitutional democracy. Except the elections to सरपंच base level 73 amendment के हिसाब से हम ग्रामीण व्यवस्था जो कहते हैं रूरल इंडिया, that is the elections are held without any party basis. If I am not wrong, the guest can correct me. So the party without party basis, the elections are held along India, across India for panchayats, panchayat members, and then you have a 2-tier panchayat and 3-tier panchayat. In Telangana, we have 3-tier panchayat. First sarpanch, बाद में MPTC, मंडल परिषद टेरिटोरियल कमिटी, देन जिला परिषद टेरिटोरियल कमिटी. सो जिस तरह मंडल परिषद के चेयरमैन हो गए और जिला परिषद चेयरमैन हो गए, लेकिन वो भी आजकल पार्टियों के खाते में डाल रहे हैं कि ये स्वतंत्र चुनाव होनी चाहिए, क्योंकि लोग की जो भावना है, चिंता है, वो प्रक्रिया क्या उनके वेलफेयर या डेवलपमेंट प्रगति हो या ऐसे चीज जो उनके साथ सही तरीके से सरकार जनहित में कार्यक्रम कर रही है या नहीं, पारदर्शिता है या नहीं, इसके लिए ये स्वतंत्र चुनाव जो है आर्टिकल 73 74 अमेंडमेंट के द्वारा पंचायत और हमारे पुरपालक शाखा है टू पंचायत एंड म्युनिसिपालिटीज. बट म्युनिसिपालिटीज यू हैव सीन नाउ दे हैव बिकम पॉलिटिकल. But at panchayat level, these 2-tier, 3-tier elections also, after panchayat, they have more or less become political party infested. So now, then comes the elections to assemblies, member of legislative assembly. It is fought on party basis. Similarly, MP elections, member of parliament. It is again fought on party basis. And again, the elections to legislative council. That should have been independent, graduates or teachers constituency. But these days, even political parties are nominating them. Again, there is a check to control the corruption or corrupt methods or the injustice being done to the people. We have elections to member of legislative council. And some are nominated by the assembly itself. But some are held for teachers or graduates constituencies. They should be apolitical, as far as my knowledge goes. But these days, they are also. Similarly to the Rajya Sabha. Again, Rajya Sabha, you have state assemblies electing them and some nominated members to both assembly as well as parliament. Whether it is Lok Sabha or Rajya Sabha, you have. So this is the election scenario. I will just show you. Then I'll take you into the discussions. Because I'm not going extra length. People are already aware what the election process is like. So I don't want to go beyond. This is how India looks. And in India, we have elections all around
and different type of elections. And this also I'll try to show you. As I have already explained, type of elections. Member of parliament in Rajya Sabha and Lok Sabha डायरेक्टली चुनाव जो है पार्टी बेसिस पे होते हैं. मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इट शुड बी एपॉलिटिकल एक्सेप्ट फॉर दोज बीइंग इलेक्टेड बाय द members of the assembly. Members of local governance bodies, this should be apolitical. यहाँ पर जो है पार्टी के प्रस्ताव नहीं होनी चाहिए. और बाद में मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, शासन सभा, और बाई इलेक्शन जो भी होते हैं वो पार्टी के ऊपर स्टेट शासन सभा और लोकसभा के लिए. तो ये है हमारी. तो अब हमारे मित्र जो है जो जुड़े हैं वो चाहते हैं कि ये सब जो प्रक्रिया है ये तो बिना पार्टी की होनी चाहिए, लेकिन ये भी पार्टी के खाते में जा रहा. तो स्वतंत्रता नहीं है. हम चेक जो बोलते हैं ना, हमारे संविधान जो चेक दिया है, जब शासन सभा लोकसभा जिस तरह कंट्रोल किया जा रहा है पैसे के हिसाब से या कारपोरेट संस्थाओं के हिसाब से, व्यापारीगण जब कंट्रोल करते हैं तो वहां लोकतंत्र की कोई पात्रा ही नहीं होती. प्रजा की जो हित है वो खत्म हो जाती है. इसीलिए ये लोकल गवर्नमेंट बॉडीज को और ये काउंसिल्स के लिए बिना पार्टी के चुनाव हमारे संविधान ने किया है. लेकिन यहां पर भी जो भी पार्टी आती है विधानसभा में, वो सब कुछ ये लोकल पंचायत और पुरपालक शाखा, पंचायत एज वेल एज म्युनिसिपैलिटीज, दे वांट टू कंट्रोल. They don't want the other opinion to prevail. Similarly, the same Lok Sabha parliament, the party in power, they would love to see that they control all the state assemblies, including panchayats and municipalities, and also to legislative councils and Rajya Sabha. That means we are becoming autocracy. This is not democracy. No more democracy. लोकतंत्र में पार्टियों के संघाट, पब्लिक की वॉइस, जो प्रतिपक्ष की वॉइस भी होनी चाहिए, वो प्रजा हित में होती है. तो क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है. इसीलिए पार्टीलेस इंडिया का एक मुद्दा आज हम DRTSP चैनल्स के द्वारा आगे ला रहे हैं. पटेल जी बोलिए. जी देखिए, आप भी इस विषय के पूरे जानकार हैं. जो कॉन्स्टिट्यूशनल बातें हैं इसके बारे में आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, और आपकी चैनल को देखने वाले जो साथी हैं दूसरे, वे भी इस बात को जानते हैं. यहाँ पर सीधे सीधे हमें ये देखना चाहिए, एज पर अवर कॉन्स्टिट्यूशन, as per our constitution, in very first article of the constitution, it is written that India is union of states. India is union of states. And in the same way, और उसी तरह से प्रत्येक राज्य जो हैं वो प्रत्येक राज्य भी अपने गांवों और शहर का ही संघ है. तो इसी बात को समझते हुए हमें ये देखना चाहिए कि हमारे संविधान में तो एग्जैक्टली there is no provision for political parties. Even हमारे elections originally जो कि हम लोगों ने संविधान के आर्टिकल 324 के तहत देश में इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी जो है, ये एक ऑटोनोमस बॉडी को, इलेक्शन कमीशन को, निर्वाचन आयोग को हमारे द्वारा यानी देश के लोगों के द्वारा जब ये संविधान बनाया हमने, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तब हमने इलेक्शन कमीशन के बारे में सोचा कि हु विल कंडक्ट द इलेक्शंस.
तब हमने ये बात रखी कि आर्टिकल 324 के तहत एक ऑटोनोमस बॉडी इलेक्शन कमीशन को all the power is given by us, and for what? To conduct free, fair and transparent elections. लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है. From the very beginning of the elections, even when there is no provision for political parties, and even then parties entered the elections. Parties entered the field of elections. And why it happened? It happened because of our ignorance. It happened because of our illiteracy in the matter of election, for the subject of election. People of India were not knowing, नहीं, वे जानकार नहीं थे भारत के लोग. इतना ही नहीं, आज भी जानकार नहीं है. आज भी भारत के लोग इस बारे में जानते नहीं है. और ज्यादातर लोगों की समझ तो यही बनी हुई है कि विदाउट पॉलिटिकल पार्टी ये हो ही कैसे सकता है कि प्रतिनिधि पाए जा सकें. Without any political party, how we can get represented? So aim of Partyless India is that not only to get the representative, but to get the right representative. Not only the representative, but to get the right representative from each and every constituency. तो ये हमारा विचार है कि कैसे ये पॉसिबल हो सकता है. तो इसके लिए we already have developed our vision, and for that vision we have developed a vision document also. In that vision document there are nearly 140 pages, and an idea is also developed. एक ये विचार भी हमारे द्वारा विकसित किया गया है, और वह विचार है एक कार ड्राइवर एंड फ्यूल के बारे में. अबाउट अ कार ड्राइवर एंड फ्यूल. तो हमने एक ऐसे विचार को डेवलप किया है कि वास्तविक लोकतंत्र, real democracy, and for participation of the people, and by that getting decentralization in the system. इसके लिए हमने ये 3 बातें जरूरी समझी हैं. इसके लिए हमारा एक जो विचार है, हम बहुत जल्दी, मैं यहाँ अब हमारे डॉक्टर सचिन पेटकर जी से ये विनंती करूंगा कि हमारे सचिन पेटकर जी, अगर आप अलाउ करें उनको, तो वे स्क्रीन को शेयर करेंगे, और स्क्रीन को शेयर करके हमारे विजन डॉक्यूमेंट से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर है यहाँ प्रस्तुत करने के लिए. Yeah, most welcome. I have already given multiple. Yes, Wonderful. there is a diagram
there is a picture of car driver and fuel. Yeah. By presenting that picture, Yeah. we would like to put some light on the idea. Yeah, Dr. By that Sachin, you by can, that, yeah. yes, yes. So Sachinji is just trying on, I think, his laptop. Yeah, Yes, yeah. it is now here. So please look at the picture. Yes, here it is. Yeah, you can go to ये पूरा expand entire screen का ये कर सकते Yes, yes, yes. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने ये हो। एक सेकंड एक, पटेल जी एक सेकंड, सचिन जी, जी यू हाँ। एक्सपैंड कंप्लीट स्क्रीन पे ला सकते हैं आप। हाँ, मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे वो अगर बाकी पेजेस को की तरफ नेविगेट करना है तो खाली मुझे ये आसान होगा। ऊपर नीचे क्लिक कर सकते हैं आप, ये पहले कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से आसान होगा, इसीलिए मैंने किया था। ठीक है, मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ, उसमें नहीं, कोई यहाँ प्रॉब्लम। पर दिख रहा है, फिर भी कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, नाउ इट्स फुल स्क्रीन। अब बताइए। ओके, अब देखिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताया गया है। इस चित्र में एक कार दिखाई दे रही है, उस कार में ड्राइवर भी बैठा हुआ है, और राइट में फ्यूल टैंक भी दिखाई दे रहा है। फ्यूल ऊपर में जो लिखा है, वहां पर 3 बातें लिखी हैं। पहली बात ये बताई गई है कि बिना कार के, इफ देयर इज नो कार, देन ड्राइवर और फ्यूल जो है वो अपने आप कुछ नहीं कर सकते। अपने आप बिना कार के कुछ नहीं हो सकता। मीन्स कार इज वेरी मच नेसेसरी एट द सेम टाइम। समझ लीजिए, कार है और कार भी है, फ्यूल भी है, लेकिन देयर इज नो ड्राइवर, देन जर्नी आगे नहीं जा सकती। उसी तरह से थर्ड थिंग कि देखिए, कार भी है, कार में ड्राइवर भी है, एंड देयर इज नो फ्यूल इन द कार, इन द टैंक, देन ऑल्सो जर्नी पॉसिबल नहीं है। तो इन 3 चीजों को बताने के द्वारा वास्तविक लोकतंत्र के लिए हमने 3 बातों को बताया है। एक तो है आवर ऑर्गेनाइजेशन। नीचे देखिए लिखा हुआ है, संगठन इज इक्वल टू ड्राइवर। आवर ऑर्गेनाइजेशन इज ड्राइवर, एंड एट द सेम टाइम फ्यूल जो है वो क्या है? वो है कमिटी यानी समिति, पीपल्स कमिटीज, सब्जेक्ट वाइज सिटीजन्स यानी कि पीपल्स कमिटीज, एंड द थर्ड इज कार इज मतदाता सभा in each and every constituency. This is our idea, and there are 3 short questions. आगे नेक्स्ट जो हैं, आगे 3 सवाल इसी संदर्भ में, इसी रेफरेंस में। यहां पर देखिए, here are 3 questions and 3 answers. Number first question is, what we demand? What is the exact demand of the people? We want सही, योग्य, लायक, ईमानदार प्रतिनिधि। जब ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है, जो कि ब्रिटेन से हमने डिराइव किया है, तो ओके, सो वी वांट द राइट रिप्रेजेंटेटिव। तो क्या आज हमें मिल रहा है? क्या नहीं मिल रहा है? तो हु कैन गिव अस? उसके बारे में हमने बताया है कि ये जो पार्टीलेस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे में इसको दे सकते हैं इन ईच एंड एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी। कैसे, वो आगे की बात है। तो अब घड़ी भर के लिए हम
मान लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग कि वी हैव गॉट द राइट रिप्रेजेंटेटिव, मतलब हमें जैसा चाहिए उस तरह का सभी क्वालिटी वाला एक परफेक्ट प्रतिनिधि अगर हमें मिल भी जाए, तो मिल जाने के बाद क्या हो सकता है? हम मान लेते हैं कि हमें मिल गया वो प्रतिनिधि इन ईच एंड एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, या किसी भी रिप्रेजेंटेटिव असेंबली में all the members all the members are the right representatives. Then what next? Next is our second question. Second question will arise, अब सही प्रतिनिधि को मिल जाने के बाद दूसरा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि हमारे उस प्रतिनिधि के साथ वोटर का, मतदाता का संवाद, बातचीत, कम्युनिकेशन कैसे होगा? व्हाट विल बी द मैकेनिज्म? क्योंकि आफ्टर ऑल प्रतिनिधि तो प्रतिनिधि है, वो मालिक तो नहीं है, मालिक तो है वोटर। तो मालिक ने अगर उसको प्रतिनिधि के तौर पर भेजा है तो मालिक उसके साथ बातचीत भी करना चाहिए, जो कि वर्तमान में तो नहीं हो रहा है। तो वो होगा कैसे? उसको एकदम क्या कहते हैं कि रेगुलर बेसिस पर उसके साथ बातचीत कैसे होगा और कौन करेगा? व्हाट विल बी द मैकेनिज्म? एंड दैट मैकेनिज्म इज वोटर्स असेंबली, यानी मतदाता सभा। दैट इज द मैकेनिज्म थ्रू विच voter will communicate with its representative। ये तो दूसरी बात हो गई। अब मान लीजिए कि हमने ये व्यवस्था भी कर दी कि मतदाता का प्रतिनिधि के साथ बातचीत भी होगी। हम ये मान लेते हैं कि उसके चुने जाने के बाद वो प्रतिनिधि जो हैं वो प्रत्येक महीने, every month, प्रतिनिधि will remain present in meeting of मतदाता सभा before voter assembly, और वहां मतदाताओं के साथ, मतदाता के साथ उसकी बातचीत भी होगी। लेकिन तब सवाल जो खड़ा होता है तीसरा, ये थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज दैट थर्ड क्वेश्चन? कि when we assure the communication, then the third question कि भाई वोटर अगर अपने प्रतिनिधि के साथ बातचीत करेगा तो what will be the content? What will be the content of that communication? And who will make our voters that much knowledgeable? That much knowledgeable, यानी हमारा मतदाता, प्रत्येक मतदाता ऐसा होना चाहिए कि जो प्राय हर विषय में बेसिक जानकारी जो है वो पूरी रखता हो। तो ये देखिए सचिन जी यहाँ लिख रहे हैं कि एजुकेशन एंड एनलाइटनमेंट ऑफ द वोटर्स। तो इस सब के लिए हम लोगों ने बहुत कुछ सोचा है, क्योंकि अब समय मीटिंग में, इस मीटिंग में जैसा आपने बताया कि 40 मिनट होता है, तो मैंने तो देखिए अपनी तरफ से एक बात ये प्रस्तुत कर दी। अब मैं जरा ये चाहूंगा कि अगर आप इसके लिए अनुमति दे तो अब सचिन पेटकर जी भी कुछ अपनी तरफ से बातें रखेंगे। बात कर सकते हैं सचिन जी। अब आप तो एक सामने आया, एक स्वतंत्र प्रतिनिधि के रूप में आया, लेकिन विधानसभा हो या लोकसभा में उसकी अध्यक्षता चीफ मिनिस्टर हो या मंत्रिमंडली हो या प्रधानमंत्री हो, वहां की मंत्रिमंडली हो,
और स्पीकर हो, इस ये चुनाव प्रक्रिया किस तरह होगा अगर हमारे पार्टी लेस अगर हो पूरे इंडिपेंडेंट, इट्स नथिंग बट एक स्वतंत्र प्रतिनिधि की सभा होगी, लेकिन पार्टी बिना दल की। लेकिन किस तरह हम स्पीकर को चुनेंगे, किस तरह डिफरेंट पोजीशंस चीफ मिनिस्टर को चुनेंगे, एक लीडर होता है ना हाउस का, और किस तरह हम ये करेंगे। जी डॉक्टर जी, मैं थोड़ा वक्त लेना चाहता हूँ। हमारे पास कितना वक्त है, अगर थोड़ा सा मुझे अभी आइडिया अपने को दीजिए। अपने को देखिए 15 से 20 मिनट का वक्त है। हाँ ठीक है, तो उसमें जितना हो सकता है मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि वी आर अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हमारा हमने डेमोक्रेसी को स्वीकार किया है। व्हाट इज डेमोक्रेसी? सो डेमो इज मीन्स पीपल एंड क्रेजी इज द रूल। सो पीपल्स रूल, पीपल्स रूल, इसीलिए तो हम कहते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, और ऑफ द पार्ट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल। तो रूल किसका होना चाहिए? तो लोगों का होना चाहिए। कौन चलाएगा? लोग चलाएंगे। किसके लिए चलाएंगे? तो लोगों के लिए चलेंगे। तो ये तीनों बातें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है। अगर आपने आर्टिकल 84 देखा, तो उसमें पार्लियामेंट का मेंबर का चुनाव कैसे होना चाहिए उसके बारे में लिखा है कि ओनली अ सिटीजन इज एलिजिबल टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन। पूरा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी पार्टी की बात नहीं हुई है। अगर हमने इस स्पिरिट को देखा कॉन्स्टिट्यूशन के, तो हमने हमने जो स्वतंत्रता पाई है वो सिर्फ अंग्रेजों से नहीं पाई है। वी गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल ऑल्सो एंड एम्पायरिकल प्रिंसली स्टेट्स ऑल्सो। ये पूरा का पूरा जो पावर का सेंटर था वो ब्रिटिश एम्पायर की तरफ था, और इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के पास था, रियासतों के पास था। वहां से पावर ट्रांसफर हुई है लोगों के हाथ में, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। और इसीलिए जब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में चर्चा हो रही थी कि वोटिंग का जो अधिकार है वो किसको मिलना चाहिए, क्या महिलाओं को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, क्या क्या अनएजुकेटेड लोगों को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, क्या दलितों को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, या सिर्फ ऐसे अलग अलग चीजों के बारे में चर्चा हुई, और हमने ये डिसाइड किया कि irrespective of whatever your caste is, whatever your sex is, whatever your educational background is, whatever your financial state is, irrespective of that and everything, बस आप इस देश के नागरिक हो तो आप मतदाता हो जाते हो। और उसी वक्त ये भी हमें हमें अधिकार मिला है कि एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया वी हैव एवरी राइट टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन। इसका मतलब है कि इस डेमोक्रेसी का यूनिट क्या है? इस डेमोक्रेसी का यूनिट है सिटीजन, नॉट अ ग्रुप ऑफ सिटीजन। वी आर यूनाइटेड सिटीजन्स। हमने अगर एक एक छोटे छोटे हमने ग्रुप कर दिए, तो ये बिल्कुल इन अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा, अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी होगा। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी पॉलिटिकल पार्टी की चर्चा नहीं है, कहीं भी पॉलिटिकल पार्टी की चर्चा नहीं है। हमने सिर्फ उसको ग्राम सभा तक सीमित किया है, लेकिन हमारा पूरा का पूरा जो दायरा है भारत का, उसमें कहीं भी पॉलिटिकल पार्टी का उल्लेख भी नहीं, मेंशन भी नहीं है। सो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमने इसको क्लेम क्यों नहीं किया उस वक्त 1952 के वक्त? क्योंकि एक तो हमारे पास शिक्षा नहीं थी, समझ नहीं थी, संसाधन नहीं थे। जो आज कम्युनिकेशन के संसाधन जो हमें डेवलप हो चुके हैं, तो हम एक दूसरे से संवाद इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो संवाद की भी प्रॉब्लम थी। तो इसका फायदा कुछ चंद ग्रुप्स ने लिया, उसको हम कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। ये कॉर्पोरेट एंटिटीज है, ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये पार्टीक्रेसी है। और इस पार्टीक्रेसी में हमें जो मिल रहा है वो है पार्टीक्रेसी। ये फॉर द पीपल नहीं है, फॉर द पार्टी है।
ये ऑफ द पीपल नहीं है, ऑफ द पार्टी है, ये बाय द पार्टी है, बाय द पीपल नहीं है। और इसीलिए यहां जनता की आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि हमने जो कैंडिडेट्स हम चुनते हैं, हमें लगता है कि वो लोगों के प्रतिनिधि है। वो लोगों के प्रतिनिधि हो ही नहीं सकते, वो पार्टियों के प्रतिनिधि है। दे आर रिप्रेजेंटिंग द पार्टीज, नॉट द पीपल। हमें लगता है एक एंटिटी आ जाती है और कहते हैं कि हमने इस फलाना फलाना आदमी को हमने टिकट दिया है और ये आपका प्रतिनिधि बन जाएगा। और लोग इकट्ठा होकर भी एक तरीके से अज्ञान की वजह से उसको वोट दे देते हैं। बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान है कि लोगों ने एक साथ आकर अपने में से किसी को एक एक कैंडिडेट को चुनना है, उसका चयन करना, सिलेक्ट करना है, और उसको जब इलेक्शन होगी उसको वोट करना है और उसको इलेक्ट करके देना है। और वो क्या होगा, वो कैंडिडेट वो लोगों का कैंडिडेट लोगों का प्रतिनिधि बन जाएगा। या और आप लोगों का एक जब नहीं, आप एक बार ये इसमें से बाहर आ जाइए, ये जो ओके ओके स्पीयरिंग से यस बाहर आ यस जाइए। यस इट्स यस एन यस इंटरेस्टिंग अभी डिस्कशन, इट्स एन इंटरेस्टिंग डिस्कशन। नाउ या कंट्री विल अंडरस्टैंड। और हम हमको अभी 6 मिनट की समय है, हम यहीं यहीं तक सीमित रखते हैं आप जो बता रहे हैं। यस यस और यस किस तरह हम सीएम और पीएम को सुनेंगे, हम पार्ट 2 में करेंगे। बोलिए सर। श्योर। तो दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि हम ये बातें करते रहते हैं, और बहुत सारे लोग, मतलब इस देश में विद्वान लोग भी है, जानकार लोग भी है, पॉलिटिक्स के बारे में, इलेक्शंस के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत जानकारी रखने वाले भी लोग हैं। लेकिन वो इस पार्टी की मेंटेलिटी से बाहर नहीं आ रहे। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर हम, मैंने जो मुद्दा यहाँ पे रखा कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन के अरीना में आने का कोई प्रावधान है क्या, तो आपको कहीं भी नहीं दिखाई देगा। ये कोई बात नहीं कि इसी से नैरेटिव आ जाता है कि एक ऑपोजिशन स्ट्रांग होना चाहिए। हमने लड़ाई की, अंग्रेजों के खिलाफ हमने लड़ाई की है, इस और स्वतंत्रता पाई, हम फ्री हो गए, इसलिए नहीं कि हम आपस में लड़े। ये देश हमारा घर है, ये देश हमारा घर है, और इस घर को चलाने में हमें पार्टीशन नहीं चाहिए, पार्टियां नहीं चाहिए। हम एक दूसरे में विभक्त, डिवाइडेड नहीं रह सकते। हम एक साथ इस घर को चलाएंगे। इस पार्लियामेंट में हर एक निर्वाचन क्षेत्र से कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव आएगा, और वो रिप्रेजेंटेटिव है, वो लीडर नहीं है। वो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आए हैं। लीडर तो लोग हैं। जैसे राजतंत्र में राजा लीडर होता है, वैसे लोकतंत्र में लोग ही लीडर है। लेकिन हम सब मिलकर पार्लियामेंट में बैठ नहीं सकते हैं, और अगर बैठेंगे तो वो क्या क्योटिक हो जाएगा। इसीलिए ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम है कि वो प्रतिनिधि जाए वहां पे, पूरे देश के प्रतिनिधि इकट्ठा मिले, चर्चा करे, और वो चर्चा में क्या हो रहा है उसकी जानकारी वो अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में हर प्रतिनिधि जाकर अपने लोगों से संवाद करे कि ऐसे ऐसे इशू हो रहे, इस तरीके से डिस्कशन हो रहे, आपका मत क्या है। वो प्रतिनिधि है, वो लोगों का मत वहां रखने के लिए है, वो मन की बात करने के लिए नहीं है, अपना मन की बात नहीं। उसका भी एक मत हो सकता है, लेकिन पार्लियामेंट में वो रखेगा मत तो लोगों का मत रखेगा। वंडरफुल। तभी वो रियल पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी हो सकती है। हम हर एक इश्यूज के ऊपर हमारा ज्ञान होना चाहिए। अगर ज्ञान नहीं होता है तो प्रॉब्लम है। तो ज्ञान कौन कराएगा? तो हमारे देश में बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, तो उन एक्सपर्ट्स को इकट्ठा लेकर हम एक अलग अलग समितियां बनाने की हमने सोची है। इसीलिए ये जो 3 बातें हमने की, फ्यूल, वो जानकारी, जो फ्यूल है वो कहाँ से आएगा, तो सिटीजन कमिटीज, एक्सपर्ट कमिटीज, अलग अलग विषयों के ऊपर। जैसे अलग अलग मंत्रिमंडल है, वैसे अलग अलग कमिटीज होंगे जो लोगों को अलग अलग विषयों के ऊपर एनलाइटन करेंगे, जानकारी देंगे, ओपिनियन देंगे कि ये होना अच्छा ठीक है, वो ये इसके बारे में ये ठीक है, वो ठीक है। और फिर अल्टीमेट डिसीजन तो लोग ही लेंगे, लेकिन डिसीजन लेते वक्त सिर्फ मेजोरिटी विंस से, जैसे हम कहेंगे कि जैसे वो एक सोक्रेटिस की एक बात है कि किसी शिप अगर किसी तूफान में घिर जाता है तो किस तरीके से डिसीजन लेना चाहिए। अगर डेमोक्रेटिकली मेजोरिटी विंस से करेंगे अगेन तो वहां तो जो सेलर्स है उनकी मेजोरिटी होगी, और कैप्टन तो माइनॉरिटी में जाएगा। और फिर उनको तो यहाँ पता नहीं है दिशा कौन सी, क्या करना चाहिए क्या नहीं, यहाँ तो वो तो सब डूब मर जाएंगे। इसीलिए हमें चाहिए, गाइडेंस भी चाहिए।
लेकिन हाँ गाइडेंस जो देगा उसके पास अधिकार नहीं होगा डिसीजन का। डिसीजन का अधिकार तो मतदाता के पास रहेगा, लेकिन मतदाता सुनेगी एक्सपर्ट्स की और अपना दिमाग लगाएगी और डिसीजन लेगी, और प्रतिनिधि उसको रखेगा पार्लियामेंट में। तो अभी कुल मिलाकर, हाँ, तो अभी मैं मीटिंग जी अभी समय अगर पूरा हो जाएगा तो क्या हम दूसरी लिंक के द्वारा नहीं नहीं फिर जुड़ सकते नहीं हैं? नहीं, ऐसा है 1.5 मिनट की समय है और ये आप यहाँ प्रक्रिया खत्म करेंगे, फिर सोमवार को पार्ट 2 में लेंगे। अब दो दो 2.5 मिनट्स है। सोक्रेटिस की अच्छी शिप की एक एग्जाम्पल दिया है। तो अल्टीमेटली क्या है, प्रजा जो मैं है प्रजा ही राजा है। अब क्या कहना चाहते हैं? मैं क्लोज मैं मैं 1 मिनट बस में एक आपने बात जो मैं इसमें ऐड करता हूं, अशोक भाई। करिए करिए। प्रजा ही राजा है, लेकिन सिर्फ इस किताब में राजा है। राइट वो देश के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर भी राज उसका होना चाहिए। तो राइट इसके लिए पार्टीलेस इंडिया है। राइट, वंडरफुल। या अशोक जी। जी जी, बस आधे मिनट में इतना कह सकता हूं कि अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, अगर उतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी से अगर एक प्रतिनिधि तय किया जा सकता है तो एक हाउस में से एक लीडर भी तय किया जा सकता है। बस वो अगले बारे में आएंगे। जिस तरह आपके ही राजकोट एरिया में ही इस बार चुन के आए स्वतंत्र, वो भी पार्लियामेंट लोकसभा के लिए, ये मैं कहीं नहीं देखा। तो इस तरह की धज्जियां उड़ा रहे हैं हमारे। कमलेश भाई, आप 1 मिनट में क्या कहना चाहते हैं? ऑडियो ऑन करके बात करिए। हाँ, ये जो हमारा जो विचार है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए, और समझ में भी आ सकता है लोगों को, क्योंकि ये अभी जो पावर पार्टियों के पास है वो पावर जनता के पास जाएगा इससे। वंडरफुल। ये जो हमारा पार्टी लेस करेंगे तो वंडरफुल। सो ये आज की फर्स्ट पार्ट है। हम इंटरेस्टिंग डिबेट, आई एम गोइंग टू कम बैक on Tuesday, Monday, Tuesday, or Wednesday, any days, because there is assembly session going on here. So it's a budget session, but this is an important discussion. We are going to take it Okay. forward in series. On Monday, will we join the meeting at 4? Yeah, For done. That we will the right internally time. circulate and join. Again, Okay. we will say this is a good omen. This is how we discuss. This is what we want every citizen to discuss. Very Not group of fine. citizens. Very fine. Every Very citizen. fine. Every citizen is a थैंक constitutional. यू, थैंक यू, एक नागरिक जो थैंक है यू। संविधान है। पहले आप लोग डर निकालिए। प्रधान